Hello my gorgeous souls, I am makeup artist Titli Mukherjee and welcome back to my channel. So firstly, I would like to thank each one of you for the love that you showed on my last video. When I thought of making that video, it was a little nerve-wracking because we all know that the person I was talking about is a huge influencer and probably the biggest influencer at this moment, and me being such a small channel will call her out, and I thought that unke sare fans mere pe sab jhapat parenge and I'll get so much hate, but turns out that it was actually not the case, and people understood where I was coming from. Maximum people understood. Obviously I cannot never imagine कि 100% लोगों को मेरी बोली हुई चीज़ें समझ में आएगी, but I would say कि 90 to 95% of the people who saw that video did resonate with me, did understand from where I was coming and what I was trying to explain you guys. So I'm extremely happy and honored कि आप लोग मुझ पे उतना ट्रस्ट कर पाए, because I know maximum of you guys are new on my channel. आपको कोई आइडिया भी नहीं था इसके पहले कि मैं कौन हूँ, and now suddenly एक वीडियो देख के आप मुझसे रिलेट कर पा रहे हो. You are subscribing to my channel, you are saying such nice things on my social media. Thank you, you guys made me feel special. So as you guys already saw from today's title, I'll be answering all of your questions. जो आप लोग नेगेटिव बहुत कुछ मुझे बोल रहे थे, उसका सारा जवाब मुझे आज देना है, बिकॉज आई एम नॉट समबडी जो भाग जाएगा, आंसर्स नहीं देगा. आई विल ट्राई एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग दैट आई कैन, ताकि जो लोग मुझे अभी तक पहचान नहीं पाए थोड़ा बहुत और मेरे बारे में जान ले और थोड़ा मुझे समझ ले. सो या, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज़ कीप वॉचिंग. इट विल बी अ लॉन्ग वीडियो अगेन. सो अपना स्नैक्स, अपना डिनर, अपना लंच, जो भी आपको करना है, डू ब्रिंग इट अलॉन्ग. या, लेट्स गेट स्टार्टेड. एंड बिफोर दैट, इफ यू न्यू हियर, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल. ऑल्सो प्रेस द बेल बटन राइट नेक्स्ट टू द सब्सक्राइब बटन so that you are notified every time I upload a new video. And also come follow me on my Instagram. My Instagram is Titli Mukherjee. I do such colorful looks on my Instagram, so I hope to see you there. And now without any further ado, let's get started. Firstly, I would like to introduce myself because बहुत जन आप लोग न्यू हो मेरे चैनल पे and आप मुझे अच्छे से नहीं जानते हो. मैं क्या करती हूँ वो आप अच्छे से नहीं जानते हो. So let's start with that. My name is Titli Mukherjee and I'm an entrepreneur and a makeup artist. So in 2019, I thought कि बहुत हो गया passion. Now let's turn this passion into business. And I started my online courses, online makeup courses, both self and professional courses in 2020. And 2020 से लेके अभी तक, it's been 1 year. In 1 year, I have taught over 600 people. Yes, 600 freaking people in just 1 year. So if any one of you is interested to learn makeup from me, either self or professional makeup, then you can definitely contact me on the given number. My team will respond back to you. And yeah, that is all about me. And side में मैं Instagram and YouTube करती हूँ. This is just a passion project. It is not my business, and I don't think it will ever turn into a business. जैसे मेरा videos roll out हो रहा है against influencers and the brands. My father is an actor and producer in the Bengali film industry. My mother is a housewife and she recently started her cloud kitchen. So अगर आप लोग कोलकाता एरिया में हो and if you want to taste her delicious food, then you can definitely order. I'll mention the number down below, so you can definitely go ahead and order. You will get the awesome dishes and the awesome taste that you will not get anywhere else, I can guarantee you. And yes, I'm a married woman. I have been married for the past 2.5 years. My husband lives in Dubai. मैं भी उनके साथ दुबई में ही रहती थी, but मैं आई थी इधर before the second wave, and मैं इधर आते ही lockdown start हो गया and I could not go back, and अभी भी all the flights are closed, so I am not able to go back to Dubai, and that's why currently I am staying in my own place, my Kolkata house. That's all the backstory about me and my family. The next most common question was कि आपने मालविका को ही क्यों चूज किया and उनके ऊपर ही क्यों वीडियो किया. So the answer is very simple, I think, because उनके जगह और कोई नहीं था. I did not see any other influencer talking to their subscribers or followers like this ever before. So हो सकता है किसी और ने किया होगा, but I personally don't follow them, तो इसलिए मुझे नहीं पता चला था. मैं उनको बहुत फॉलो करती थी. As I've told you guys, I was a fan. I have made a video about her before also, और मैंने उधर mention किया था कि yes, I am a fan. तो I was a fan. I used to follow her stories, and तब जब मैंने देखा कि उन्होंने ऐसे react किया, that really broke my heart into pieces. Like, how could she do that? Because this was never expected from her. At least I did not expect this. So इसलिए मैंने उनके बारे में वीडियो बनाया. I did call her out in 2020 as well, जब वो प्रमोट कर रही थी Pond's का वो जेल लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम, and cream has horrible ingredients, and मैंने उनको तभी भी कॉल आउट किया था कि you are such a big influencer, how are you doing this without doing any research work before that. That was the other time when I called her out. And it's not only with Malvika. I have called out various other influencers. I have called out brands like Mamaearth, Wow,
गुड वाइब्स, मैंने इनके ऊपर वीडियोस बनाए हैं एंड मैंने आप सभी को बोला है कि क्यों मैं इन ब्रांड्स को सपोर्ट नहीं करती हूँ और इन द फ्यूचर ऑल्सो प्रॉब्ली आई विल नॉट बी सपोर्टिंग देम। फ्यू ऑफ द कमेंट्स ऑल्सो सेड कि ये सब पैसे के लिए कर रहे हो। सो जस्ट लेट मी टेल यू गाइस कि अगर आपको यूट्यूब पे या फिर इंस्टाग्राम पे अगर आपको ग्रो होना है, जल्दी ग्रो होना है, आई एम गिविंग यू अ शॉर्टकट टिप, राइट? सो दैट टिप इज कि आप कोई भी बड़े इन्फ्लुएंसर के बारे में बहुत बहुत अच्छा बोलो एंड चांसेस आर, देयर आर हाई चांसेस, और मैंने ये खुद देखा है बहुत जने करते हैं कि वो बहुत अच्छा बोलते हैं अपने यूट्यूब वीडियो पे या अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पे, एंड देन दैट पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर जिसके बारे में बात हो रही है वो अपने स्टोरीज पे वो डाल देते हैं, उनको बहुत फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं, उनके बहुत सब्सक्राइबर्स बढ़ जाते हैं एंड उनका चैनल पूरा टेक ऑफ करता है। सो दैट इज हाउ यू अर्न मनी। आप कोलैबोरेशन से पैसा अर्न करते हो। आप किसी के बारे में, किसी का सच्चाई अगर आप दुनिया के सामने लाओगे, एंड स्पेशली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सच अ बिग इन्फ्लुएंसर, तो आपको कोलैबोरेशंस नहीं आते, आपको हेट आता है, ठीक है? सो व्हेन समवन इज डूइंग इट एंड डूइंग इट quite elegantly and classy without using a single bad word in the entire video, then you should probably at least applaud them, encourage them, क्योंकि ये सब सच बोलना, इंडस्ट्री का सच बोलना is not so easy। आप लोग जब एक लोगों को, आप लोग बहुत सारे जन मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे थे, बट मैक्सिमम ऑफ देम वेर नॉट इवन फ्रॉम वेरीफाइड प्रोफाइल्स, लाइक आपका नेम नहीं था उधर, आपका पिक्चर नहीं था, तो आप भी फेक प्रोफाइल बना के मेरे को मैसेज करते हो, जबकि आई एम नॉट इवन अ बिग इन्फ्लुएंसर। तो आप को कुछ खराब मुझे लिखना होता है तो आप जाके अपना एक फेक अकाउंट बना लेते हो। आपको इतना डर लगता है कि क्या होगा, कि अगर ये कॉल आउट कर लेगी तो क्या होगा। सो इमेजिन कि जब कोई, मैं पूरा अपना फेस दिखा के, अपने बारे में सब कुछ बता के, अपने चैनल पे खुल्लम खुल्ला नाम लेके, सब कुछ करके मैं प्रूफ के साथ आके आपको कुछ बोल रही हूँ, तो उसमें कितना हिम्मत, कितना गट्स लगता है। लाइक एक बार अपने दिल पे हाथ रख के पूछ लो कि ये करना ईजी है, एंड कोई भी ये चीज़ पैसे के लिए या व्यूज़ के लिए करेगा? लाइक वाई विल समन डू दैट? इससे ज़्यादा मैं तो अगर उनका तारीफ कर देती, वो मेरा चैनल का प्रमोशन कर देती, उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता। ये सब करके फ़ायदा नहीं होता। सो वो भी मुझे आंसर करना था। जो मैं बता रही थी कि कुछ दिन पहले अदिति ने श्रेया के बारे में कुछ बोला था, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया था। ज़रूरी नहीं है कि चीज़ें सिर्फ मेरे बारे में ही बोली जाए तभी मैं वीडियो बनाऊँ। जब मुझे लगता है कि कोई कुछ बोल रहा है जो उनको बोलना नहीं चाहिए, उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाती हूँ, एंड दैट इज़ मी। मैं बचपन से ये करते आ रही हूँ। लाइक आई हैव हेल्प्ड लेडीज़ जिनका बहुत ही डोमेस्टिक वायलेंस होता था अपने घर पे। आई हैव हेल्प्ड देम, पुलिस के पास जाना, कंप्लेन करना, उनको उधर से निकालना। सो वो सारी चीज़ें मैंने की है। नाउ ऑल्सो आई रन अ FB ग्रुप बाय द नेम ऑफ तितली स्टाइग्रेसेस। वहाँ पे बहुत सारे हमारे सेलर्स हैं जो लोग सनग्लासेस, शीन ड्रेसेस या कुछ भी ड्रेसेस सेल करते हैं, कॉस्मेटिक्स सेल करते हैं, ज्वेलरी सेल करते हैं, वो लोग सब उधर फ्री में अपना बिजनेस करते हैं। आई हैव गिवन देम अ प्लेटफॉर्म टू डू इट। आई डोंट चार्ज अ सिंगल पैसा फ्रॉम देम। इनफैक्ट आई ऑल्सो बाई फ्रॉम देम सो दैट आई कैन सपोर्ट देम। सो मेरा ये हमेशा से रहा गया है। लाइक बहुत जन मुझे ये भी बोल रहे थे कि आप एक फीमेल हो के फिर दूसरे फीमेल को पुल डाउन कर रहे हो। नो, आई एम नॉट पुलिंग एनीवन डाउन। I just gave my opinion on the things the other party said. मैंने कुछ अपना बना के नहीं बोला है, एंड मैं ऐसे फेमिनिज्म में नहीं बिलीव करती जहाँ पे औरत कुछ भी करे वो महान होती है, एंड ऐसा थिंकिंग मेरा नहीं है। डजंट मैटर वेदर यू आर अ मेल, यू आर अ लेडी, इट डज नॉट मैटर। अगर आप गलत हो एंड अगर मुझे लगता है कि आप गलत हो, आई विल कॉल यू आउट। मी फेमिनिज्म इज के आप लोगों को सपोर्ट करो व्हेन दे डिजर्व योर सपोर्ट। अगर वो आपका सपोर्ट डिजर्व नहीं करते, आई डोंट सपोर्ट एनीवन। आई एम सपोर्टिंग द लेडीज जो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते, दे आर डूइंग स्मॉल बिजनेसेस, आई एम सपोर्टिंग देम, एंड दैट्स हाउ आई will prove myself to be a feminist. I'll not prove myself to be a feminist just because the biggest influencer is thrashing their own subscribers and मैं उधर जाके बोलूँगी नहीं नहीं आपने बहुत अच्छा किया because you are the best. Sorry, I am not that person. जहाँ पे भी कुछ गलत होगा, मुझे लगेगा कि मुझे उसके बारे में जानकारी है, मुझे बात करना है, I'll definitely talk about it. बहुत जन जो लोग मुझे FB पे फॉलो करते हैं, आपको ये भी उन लोग को भी पता होगा, कुछ दिन पहले मैंने और लड़की के साथ एकदम डायरेक्ट पंगा ले लिया था because that lady was selling creams जो काले को गोरा बना देगा, मोटे को पतला कर देगा, ऑल दोज थिंग्स वर हैपनिंग, एंड आई टुक अ स्टैंड कि नो, वी डोंट नीड, जस्ट बिकॉज आपका ब्लैक स्किन है, यू डोंट नीड टू बिकम वाइट टू बी एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी, बी अ सक्सेसफुल पर्सन। तो वो चीज़ लेके मैंने बहुत वीडियोस बनाई थी, माई वीडियोस वेंट वायरल, देयर वर लैक्स ऑफ व्यूज। सो ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे चीज़ों के बारे में वीडियो नहीं बनाती। चीज़ मुझे पर्सनली लगती है कि मुझे ये टच कर रही है, मुझे इसके ऊपर अपना ओपिनियन देना है, मैं देती हूँ। एंड ऑल्सो फ्यू पीपल टोल्ड मी कि व्हाई डू यू थ्रो शेड? सो डार्लिंग्स, आई डोंट थ्रो शेड, आई थ्रो लाइट। शेड मतलब ये होता है कि जब when you are telling something about someone, you are gossiping about someone and you are not taking their name. So without taking the names, when someone is gossiping about someone, then that is called shade. But when I am talking about a particular person with proofs, with her recordings, with her name, everything in front of you guys on a public platform, that is called throwing light and not shade. कुछ महीने पहले एक ऐसा भी वीडियो मैंने बनाया था where a particular influencer did not disclose a sponsorship. In fact, उनके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि this video is not sponsored, जबकि वो पूरा वीडियो स्पॉन्सर्ड था, and I did talk about that as well. So आपको इस चैनल पे वो सच्चाई मिलेगी. I don't know about anything else. I am not the best makeup artist in the whole world. I am not the best speaker
स्पीकर इन द होल वर्ल्ड, आई एम नॉट द बेस्ट व्लॉगर इन द एंटायर वर्ल्ड, मैं ये सब नहीं हूँ। एंड बेस्ट तो छोड़ो, शायद मैं नॉट इवन मतलब थोड़ा सा भी अच्छा नहीं हूँ, मैं मान लेती हूँ। बट द ओनली थिंग यू कैन कम हियर फॉर इज माई ऑनेस्टी। वेन एवर आई टेल यू समथिंग, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड दैट मैं आपको अपना सच्चाई बता रही हूँ। आई नेवर बी डिसऑनेस्ट बिकॉज वो मेरे खून में ही नहीं है। आई हैव ऑलवेज बीन दिस वे एंड आई ऑलवेज बी बिकॉज आई डोंट नो एनी अदर वे। और एक चीज़ मुझे लोग बोल रहे थे कि यू आर द कैरी मिनाटी ऑफ द मेकअप इंडस्ट्री, एंड आई डोंट नो वेदर आई शुड टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट और एज अ स्लैंग, मुझे नहीं पता, दैट यू कैन डिसाइड। बट वट आई विल से इज आई डोंट टॉक अबाउट एनी वंस लुक्स, एनी वंस पर्सनल रिलेशनशिप्स, वो किसके साथ शादी कर रहे हैं, किसके साथ घूम रहे हैं, या वो कैसे दिखते हैं, वो अपने रियल लाइफ में कैसा मेकअप करते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता उनसे। वेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट समवन, आई मेक श्योर कि आई डोंट इवन यूज अ सिंगल बैड वर्ड अबाउट दैट पर्सन। मैं सिर्फ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करती हूँ जो वो पुट आउट करते हैं ऑन देयर सोशल मीडिया, एंड सोशल मीडिया इज नॉट देयर पर्सनल लाइफ, सोशल मीडिया इज देयर पब्लिक लाइफ विच द ऑडियंस हैज द राइट टू अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज। सो मैं सिर्फ उनके काम के बारे में बात करती हूँ, एंड आई नेवर गो पर्सनल, बट वी डेफिनेटली हैव द राइट to talk about their वर्क लाइफ, वो हमारे सामने क्या ला रहे हैं और वो क्या नहीं ला रहे, उसके ऊपर हम डेफिनेटली बात कर सकते हैं। मैनी पीपल टोल्ड मी कि आप कौन होते हैं उसके बारे में बात करने के लिए। मैं होती हूँ उनके बारे में बात करने के लिए, बिकॉज आई एम अ सब्सक्राइबर फॉर द पास्ट 6 years। जब से उन्होंने स्टार्ट किया, आई हैव बीन अ सब्सक्राइबर, आई हैव टोल्ड हर, आई हैव सेंट हर मैसेजेस, मैं आई पुट द मैसेज हियर। मैंने उनको बहुत सारे मैसेजेस किए, एंड वन ऑफ द मैसेजेस जो मैंने लास्ट उनको सेंड किया था जब उन्होंने एक वीडियो बनाया था विच वॉज रियली डिफरेंट, मुझे बहुत पसंद आया था, इसलिए मैंने उनको पर्सनली मैसेज करके बोला था कि मालविका यू आर डूइंग ग्रेट, ये वीडियो बना के आपने सच में मन जीत लिया मेरा। आई हैव दैट स्क्रीनशॉट एज वेल, आई पोस्टेड हियर। तो अगर मैं एक हेटर होती या फिर मैं एक बैशर होती, तो कोई बैशर या हेटर ये सब कभी नहीं करता है। जब मुझे लगता है कि नहीं बंदा सही कर रहा है, तो मैं जाके लाइक करती हूँ, कमेंट करती हूँ, उनको पर्सनली डीएम करती हूँ। मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है, बिकॉज अगर मैं खराब सच्चाई बोल सकती हूँ तो मैं अच्छा सच्चाई भी डेफिनेटली बोलना चाहती हूँ। बहुत जन मुझे ये भी बता रहे थे कि आप इंडियाज नेक्स्ट टॉप मॉडल के बारे में तब क्यों बात कर रहे थे, तो मैं इसलिए बात कर रही थी बिकॉज दैट वॉज अगेन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म, एंड कोई भी चीज़ जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आती है एंड जो कि काम से रिलेटेड होता है, उसके बारे में बात करना ऑडियंस का हक है। अगर ऑडियंस बात नहीं करेगा तो कौन बात करेगा? तो फिर आपको अपने घर में अपने मिरर के सामने ही ये चीज़ें करनी चाहिए, एंड ऑडियंस के सामने नहीं आनी चाहिए इफ़ यू आर नॉट रेडी टू लिसन टू द क्रिटिसिज्म्स। सो व्हाई आई टॉक्ड अबाउट INTM मालविका उधर जब थी, वो मोनिका को, Monica was 25 years old and Malvika was 23 years old. So Malvika and another of her friend, I'll not name her because it's irrelevant, आप लोग सभी जानते हो, तो वो दोनों मिलके मोनिका को एज शेम करते थे, राइट, कि वो बूढ़ी है। जस्ट बिकॉज शी वॉज 2 years older to them, वो उनको बुली करते थे। एंड वो सबने देखा है, ये मैं कुछ बना के नहीं बोल रही हूँ, ये जिन लोग ने देखा है INTM, और अगर आपने नहीं देखा है जाके पुराने आप देखो और आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया है। शी वॉज एक्टिंग रियली बिची, मुझे वो चीज़ें एकदम पसंद नहीं आई थी। एंड ये जो चीज़ ओनली 6 years पुरानी है, ओनली 6 years, तो कोई 23 साल की लड़की अचानक चेंज नहीं हो जाती है 6 साल में। हाँ, अगर आप टीनेजर थे तो टीनेजर का सीन अलग होता है, टीनेजर में बहुत हम लोग का चेंजेस आता है तो डिफरेंट होता है। बट जो लड़की 23 साल की है, या फिर रादर 23 साल की थी उस टाइम पे, वो कभी भी इतना जल्दी चेंज नहीं हो सकती। सो आई थिंक व्हाट आई बिलीव इज कि वो ही उनका रियल फेस था जो वो 6 साल से सेव कर रही थी, एंड सडनली दैट मास्क फेल ऑफ, एंड मैंने उनका फिर से वही रूप देख लिया है, दैट एरोगेंट एंड सो फुल ऑफ हर सेल्फ, जो बाकी लोगों को कुछ नहीं समझती, वो उनका मास्क मुझे दिख गया उनके स्टोरीज के थ्रू, जो मैंने आप लोगों को भी दिखाया था। सो दैट इज माई ओपिनियन ऑन हर पब्लिक वर्क एंड हाउ शी शोड हर सेल्फ टू बी ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म। सो आप सोचो, जब एक्टर्स जब कुछ काम करते हैं तो हम लोग ऑडियंस उसको रेट करते हैं, राइट, उनके काम को रेट करते हैं, राइट। तो वो पिक्चर्स जो वो मूवीज़ बनाते हैं उसके ऊपर बोलने का हमारा हक है, बिकॉज वी आर द पब्लिक, वी मेड देम द स्टार्स दैट दे आर। वो लोग स्टार्स पैदा होकर नहीं आए थे, हम लोग ने उनको स्टार्स बनाया है। सेम वैसे ही जो आज इन्फ्लुएंसर्स हैं एंड बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऑडियंस ने ही उनको बनाया है, वो खुद आके नहीं बने हैं। ऑफकोर्स देयर हार्ड वर्क इज देयर, ऑफकोर्स वो कोई नहीं डिनाई कर सकता है कि उन्होंने काम किया है। काम किए बिना तो किसी को कुछ नहीं मिलता, तो काम आप लोग भी करते हैं, काम हम लोग भी करते हैं, सब कोई काम करते हैं। बट उनको साथ साथ वो ऑडियंस का सपोर्ट मिलने की वजह से आज वो वहाँ पे पहुँचे जहाँ पे वो है, राइट। सो अगर आप एक्टर्स को उनके काम पे, उनकी मूवीज़ पे आप जज कर सकते हो, उनको आप बता सकते हो कि उनको क्या मूवीज़ करनी चाहिए नेक्स्ट, क्यों उनका ये मूवी खराब था, क्यों उनका ये मूवी बकवास था, या क्यों उनका ये मूवी अच्छा था। तो मैं जब एक इन्फ्लुएंसर्स को बता रही हूँ कि उनको ये नहीं करना चाहिए था, देन हाउ सम ऑफ यू आर टेलिंग मी कि मुझे नहीं करना चाहिए, मेरे इसमें कोई हक नहीं है। सो इफ़ दैट इज़ द केस, देन आपको भी कोई हक नहीं है कोई भी मैटर पे बात करने के लिए। वाई कांट वी जज देम, वाई कांट वी क्रिटिसाइज देम, वाई?
That is my question. I wanted to make that audience aware कि क्या चल रहा है क्या नहीं. You should be aware of the influencers that you are supporting. जिसको आप सपोर्ट कर रहे हो वही अगर आपको आके बोले कि आप सैड हो, दुखी हो, एनवियस हो, आप टॉक्सिक हो, आपने उनको बनाया, अगर वही आपको आके ये सारी चीज़ें बोलेंगे तो ऑफकोर्स आपको खराब लगेगा. सो ये चीज़ें ऑडियंस को भी पता होनी चाहिए और ऑडियंस को भी पता होना चाहिए कि किसको सपोर्ट करना चाहिए, कौन ग्रेटफुल है उन ऑडियंस को पाके और कौन सिर्फ उस ऑडियंस का यूज़ कर रहे हैं. एंड आई एम सॉरी टू ब्रेक इट टू यू, अगर आपको लगता है कि आप एक बहुत बड़े मेकअप इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट कर रहे हो, वो कुछ भी बोले इट्स हर चॉइस, इट्स हर लाइफ, शी कैन डू वट एवर शी वांट टू, ये बोल के अगर आप फेमिनिस्ट बन रहे हो या फिर आपको लग रहा है कि आप बहुत एक पॉजिटिव काम कर रहे हो, सो डार्लिंग्स आई एम सॉरी कि ऐसा नहीं है. रादर अगर आप उन लोगों को हेल्प करो जिसको एक्चुअली में आपकी हेल्प की ज़रूरत है एंड जो आपकी हेल्प को अप्रिशिएट करे, रादर दैन दैट इन्फ्लुएंसर हु इज़ कॉलिंग यू नेम्स. So the next question was, why don't you support your other influencer friends? And definitely I do support them. I do support them by liking, by commenting. And अगर मुझे कुछ बहुत ज़्यादा पसंद आए तो मैं I make sure कि I DM them and tell them कि आपने बहुत अच्छा काम किया है. So obviously I do all of those things. But मैं वो पिक्चर ले लेके तो सबको प्रूफ नहीं दिखाने जाने वाली हूँ ना कि देखो मैंने ये किया. जैसे मालविका को भी मैंने ये सारी चीज़ें बहुत पहले की थी. बट मैंने कभी भी लगा नहीं कि ये मुझे शो ऑफ करना चाहिए. बट अभी जो सीन आया है, अभी मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों को दिखाना चाहिए कि मैंने एक्चुअली में उनको ये सारी चीज़ें बताई थी बिकॉज आई वॉज अ फैन, बिकॉज आई यूज्ड टू लाइक हर वर्क, इसलिए मैंने भेजी थी. ओके, द नेक्स्ट बिग क्वेश्चन वाज कि आप खुद इतना हाई एंड मेकअप यूज़ करते हो तो आप उनको कैसे बोल सकते हो कि वो हाई एंड मेकअप यूज़ नहीं करे. सो फर्स्टली आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैंने उनको कब बोला है कि शी इज़ नॉट अलाउड टू यूज़ हाई एंड मेकअप. गाइज प्लीज़ अंडरस्टैंड, मैंने बोला था कि शी इज़ डेफिनेटली अलाउड टू परचेज एनीथिंग एंड एवरीथिंग दैट शी वॉन्ट्स टू. हु आर वी टू टेल हर कि उनको क्या परचेज करना है क्या नहीं करना है. आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि वो जो वीडियो उन्होंने डाला उससे लोगों को प्रॉब्लम हुआ, वो लोग रिलेट नहीं कर पाए. एंड वो लोग क्यों रिलेट नहीं कर पाए वो भी आप ध्यान से सुनो और समझो क्यों नहीं रिलेट कर पाए. बिकॉज शी इज़ द सेम गर्ल जिन्होंने स्टार्ट किया था फ्रॉम अ 50 रुपीज़ गार्नियर का क्रीम. सो अभी 50 रुपये की क्रीम से लेकर अगर आप शार्लेट टिल्बरी के 5000 क्रीम में पहुंच जाओगे तो ऑब्वियसली जो ऑडियंस आपका ज्वाइन किया था, आपको जो ऑडियंस ज्वाइन किया था, दे ज्वाइंट बिकॉज ऑफ द गार्नियर क्रीम, दे डिड नॉट ज्वाइन बिकॉज ऑफ द शार्लेट टिल्बरी क्रीम. तो वो लोग इधर से इधर तक नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक प्रॉबेबली, बट आप पहुंच चुके हो. तो इससे वो लोग रिलेट नहीं कर पा रहे बिकॉज इतना जल्दी कोई इधर से इधर पहुंच नहीं जाता until unless they are influencer like you. तो वो लोग क्या चाहते हैं कि आप ये सभी चीज़ें आप उनको रेकमेंड करो ताकि वो आपसे रिलेट कर पाए. तो अगर अभी आप ये चीज़ नहीं रेकमेंड करके ये रेकमेंड कर रहे हो तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ डिस्कनेक्ट बिकॉज ऑफ विच दे मेंशन्ड इन द कमेंट सेक्शन कि वी डू नॉट लाइक दिस. हाँ, बहुत जन थोड़ा मे बी रूड होकर भी बोला होगा कि नहीं दिस इज़ नॉट नाइस, आप ये क्यों कर रहे हो, ये नहीं क्यों नहीं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको बोलोगे दे आर सैड, टॉक्सिक, दे आर अनहैप्पी इन देयर लाइव्स. यू कैन नॉट से दैट. एंड एक्चुअली अगर कोई उधर से अनहैप्पी है या कुछ है तो आप उनको वो पिन पॉइंट करके उनको खराब फील करोगे. लाइक दिस इज, इफ यू आर डूइंग दिस देन दैट इज रियली मीन ऑफ यू. यू आर नॉट सपोज टू डू दैट. यू आर नॉट सपोज टू डू इट. यू आर अ पब्लिक फिगर. रैंडम इंसान आके कोई कुछ बोलते फर्क नहीं पड़ता, बट वेल पब्लिक फिगर, अ वेल नोन इन्फ्लुएंसर, अ वेल नोन पर्सनैलिटी सेज समथिंग, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है लोगों के ऊपर. तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के बोले अपना हर एक वर्ड. सो दैट इज़ व्हाट आई मेंशन्ड. मैं उनको कभी ये नहीं बोला कि उनको क्या मेकअप करना चाहिए इन हर पर्सनल लाइफ. आई हैव ऑलवेज टॉक्ड अबाउट कि उनको क्या मेकअप करना चाहिए अपने इंस्टाग्राम पे, अपने यूट्यूब पे, जो कि उनका सोशल मीडिया है, जो कि उनका पब्लिक प्लेटफॉर्म है. एंड पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक की सुनी जाती है. एंड जिस पब्लिक की वजह से आप उधर पहुंचे उनकी सुनी जाती है. वो अपने पर्सनल लाइफ में 50 रुपये का क्रीम लगाते हैं या 5 लाख का क्रीम लगाते हैं, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता. बट वो क्या दिखाते हैं अपने यूट्यूब पे, उससे लोगों को फर्क पड़ता है. सो दैट इज़ द थिंग आई टोल्ड. आई विल नेवर से कि उनको क्या यूज़ करना है क्या नहीं यूज़ करना है इन हर पर्सनल लाइफ. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द पब्लिक प्लेटफॉर्म की लाइफ पे उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं. सो अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू. बिफोर ऑन अ चैनल शी यूज टू रेव अबाउट मिस क्लेयर्स एंड अदर ब्रांड्स. और अभी वो सब ब्रांड्स उनके पूरे यूट्यूब पे फीचर ही नहीं होते, और होते भी है तभी होते हैं जब वो एक पेड कोलैबोरेशन होते हैं. वाई? जब पेड कोलैबोरेशन हो रहा है तब आप उनको इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बट नॉर्मली आप नहीं इंट्रोड्यूस कर सकते. तब आपको शार्लेट टिल्बरी चाहिए, तब आपको मिस क्लेयर नहीं चाहिए. बट जब भी आपको एक स्पॉन्सरशिप आ जाता है तब आपको मिस क्लेयर चाहिए. बहुत जन ये भी बोल रहे थे शी वॉज ओनली टेलिंग दैट टू हर हेटर्स, नॉट टू द अदर सब्सक्राइबर्स. सो फर्स्टली अगर आपको हेटर को बोलना होता ना तो आप उधर ही हेट कमेंट्स में बता देते या फिर उनको ब्लॉक कर देते. मुझे भी हेट कमेंट्स आते. दैट इज़ द ट्रू फैक्ट कि सबको हेट कमेंट्स आते हैं. अगर आप पब्लिक प्लेटफॉर्म में हो आपको हेट कमेंट्स आएंगे ही. दैट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस गेम. वो आपको सोच के आना चाहिए. जब आप 6 सालों से, मैं तो इधर 1.5 साल से भी नहीं हूँ, तो अगर मुझे ये चीज़ पता है तो आप 6 साल से ये चीज़ कैसे नहीं सीख पाए हो. यू कैन ऑब्वियसली ब्लॉक देम एंड डिलीट देम, बट यू ऑल्सो वेरी वेल नो कि वहाँ पे हेटर्स शायद 2 थे, 4 थे, 10 थे. देयर वर हंड्रेड्स ऑफ कमेंट्स विच वर टेलिंग यू कि मालविका वी आर नॉट एबल टू रिलेट टू यू, वी डोंट वांट दिस, वी वांट ड्रग स्टोर, ये वो. दे actually are your subscribers and people who actually like you and they are asking you to do something for them.
सो दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। आप अपने सब्सक्राइबर्स जो आपको एक्चुअली कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट इज द ओनली वे दे कैन एक्सप्रेस, दे कैन नॉट कॉल यू एंड टेल ना, देयर ओनली फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज टू कमेंट्स। तो भी वो कमेंट्स में आपको बोलेंगे ना, अपना डिसअपॉइंटमेंट शो करेंगे। तो हाउ कैन यू कॉल देम नेम्स जस्ट बिकॉज दे आर नॉट एंजॉइंग योर हाई एंड मेकअप हॉल? दैट इज़ बियॉन्ड मी। बहुत जन ये भी बोल रहे थे उनका मेंटल हालत बहुत ख़राब था, इस वजह से उन्होंने ऐसा बोला। सो फर्स्टली आपको उनका मेंटल हेल्थ समझ में आया, बट उन्होंने जिन लोगों को बोला ये सारी चीज़ें, सैड, अनहैप्पी, टॉक्सिक, यू कैन यू जस्ट थिंक वंस कि अगर वो एक्चुअली में सैड या अनहैप्पी थे और ये चीज़ जब उन्होंने दोबारा उनको बताई कि एक्चुअली यू आर अनहैप्पी, सैड एंड टॉक्सिक, तो उनके मेंटल हेल्थ पे क्या फ़र्क पड़ा होगा? आपको अपने इन्फ्लुएंसर के बारे में आपको बहुत सारा थॉट है कि उनका मेंटल हेल्थ कैसा होगा, बट उन्होंने इतने सारे लोगों को जो चीज़ बताई उसके बारे में आपको एक बार थॉट नहीं आया कि द ऑडियंस जिनके पास वो वॉइस नहीं है, वो बता नहीं सकते, उनको कैसा फील हो रहा होगा? वो तो स्टोरी नहीं बना सकते ना, उनको तो वो चीज़ बोली गई, उनको लेनी पड़ी वो चीज़, तो उसके बारे में आपको नहीं फील हुआ? एंड इफ एट ऑल हर मेंटल हेल्थ वॉज नॉट डूइंग ग्रेट, जैसे मेरा भी हो रहा था कुछ दिन पहले, आई वॉज अंडर इमेंस प्रेशर, इमेंस स्ट्रेस, तो मैं पूरा सोशल मीडिया मेरा ऑफ था, आई वॉज नॉट प्रेजेंट एनीवेयर। तो अगर आपका मेंटल गेम इज गोइंग ऑफ तो यू टेक ब्रेक्स, आप ब्रेक लो सोशल मीडिया से। आपको वीडियो भी पुट आउट करना है, आपको उससे पैसे भी बनाने हैं, और आपको उसका कमेंट सेक्शन ऑफ रखना है। आप उनसे क्रिटिसिज्म नहीं ले सकते, आप वो डिलीट भी नहीं कर सकते, बट आप कमेंट सेक्शन ऑफ कर सकते हो। क्यों? आपने उसके बाद इतना सब होने के बाद ऑल्सो शी डिड दैट सेम ओल्ड न्यूड मेकअप लुक। ऑफकोर्स आई अनसब्सक्राइब, बट लोगों ने मुझे भेजा सेम मेकअप लुक, मुझे थंबनेल में दिखा एंड द कमेंट सेक्शन वाज ऑफ। तो वो पैसा बनाना चाहती है, वो अपना मेंटल हेल्थ उनका खराब है, बट शी वांट्स टू मेक मनी ऑन यूट्यूब, बट शी डजंट वांट द पब्लिक ओपिनियन। लाइक यूट्यूब का एक मेन पार्ट है द कमेंट सेक्शन, दैट्स हाउ द ऑडियंस इंटरैक्ट्स विद द इन्फ्लुएंसर, जहाँ पे अपना ओपिनियंस बताते, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वो उन्होंने बंद कर दिया है सो दैट शी कैन अर्न मनी फ्रॉम द ऑडियंस, बट शी विल नॉट लेट द ऑडियंस स्पीक। that is actually really I don't know what is the word, I don't want to be harsh, but ये नहीं होना चाहिए, जो उन्होंने किया ये नहीं होना चाहिए। आई एम सच अ स्मॉल इन्फ्लुएंसर, आई एम नॉट इवन इन्फ्लुएंसर टू बी ऑनेस्ट, आई एम जस्ट लाइक वन ऑफ यू गाइज। मैं इतना बड़ा एक वीडियो बना के, मेरा कमेंट सेक्शन ऑन है, लोग आके मुझे कुछ भी ना कुछ भी बोल रहे हैं, तो वो कमेंट्स जो है मैंने रखे हुए हैं, मैंने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ नहीं करा। मुझे भी तो, मेरा भी तो ऐड चल रहा है, मुझे भी तो उससे पैसे आ रहे हैं, मैं भी तो अपना कमेंट सेक्शन ऑफ करके रख सकती थी। और आप लोग जो मुझे बोल रहे हो मैंने पैसे के लिए किया था, तो आई वुड हैव एंजॉयड दैट मनी, जो आपको लगता है कि मैंने शायद करोड़ रुपीज़ आई हैव अर्नड। नो, इट्स नॉट दैट ईजी। अगर आपको अच्छा पैसा कमा रहा है यूट्यूब पे, यू नीड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ व्यूज़, एंड बाई लॉट्स आई मीन लैक्स ऑफ व्यूज़ ऑन योर एवरी वीडियो, तब जाके आप एक डिसेंट अमाउंट कमा सकते हो। एटलीस्ट मैं जितना कमाती हूँ उसके आसपास मैं कमा सकती हूँ। तो अगर वो वीडियो पे अपना कमेंट सेक्शन ऑफ रखती, तो आप लोगों को कैसा लगता? जब आप लोग अपना ओपिनियंस नहीं दे पाते तो आप लोगों को कैसा लगता? नहीं अच्छा लगता ना। एंड स्पेशली अगर आप मालविका के फैंस हो तो भी आपको तो बहुत गुस्सा आता। सो अभी जब वो सेम चीज़ कर रही है, तब आप लोग उसको क्यों नहीं बता रहे हो कि आपको ये नहीं करना चाहिए? यू गाइज विल स्टिल सपोर्ट हर, दैट्स नॉट फेयर। सिर्फ उनकी अच्छाई करके आप एक अपने आप को अच्छा इंसान नहीं प्रूव करोगे। बहुत जन बोलते हैं, ये एक चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आती, ये पॉजिटिव जो फेक पॉजिटिविटी है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, ये मुझे समझ नहीं आती। एवरीवन इज सेइंग कि नहीं, यू इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू से, डोंट से एनीथिंग एट ऑल। वाई भाई, वाई? ऑफकोर्स आप गाली गलौच नहीं कर सकते, आप उनके पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं कर सकते, बट यू कैन डेफिनेटली क्रिटिसाइज और अप्रिशिएट देयर वर्क। यू आर अलाउड टू डू दैट एज एन ऑडियंस, दैट इज योर हक। सड्डा हक ऐथे रख। आपको तो वो गाना गाना चाहिए, रादर दैन डूइंग दैट आप बस इन्फ्लुएंसर्स के वो चकाचौंध में आप घुस रहे हो कि नहीं दैट इज़ माई फेवरेट इन्फ्लुएंसर, तो वो जो भी करे माफ़, बट दूसरे कुछ भी करे उनको माफ़ नहीं करेंगे। वो पैसे कमाए, वो लाख रुपए कमाए, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दूसरा कोई जो उनका सच्चाई बता रहा है, उनके सच्चाई पे रिएक्ट कर रहा है, अपना मुंह खोल रहा है, इतना गट्स दिखा रहा है, उसको जाके आप गाली गलौज करोगे। वाई? यू शुड थिंक दिस, यू शुड थिंक कि आप क्या पॉजिटिव, अपने आप को ये सब करके आपको लगता है आप बहुत पॉजिटिव हो रहे हो। थिंक अगैन। अगर उनका एक्चुअली में मेंटल हेल्थ खराब ही था, स्टिल देन आई डोंट वांट टू बी हियर पंचिंग बैग, एंड आई डोंट थिंक यू गाइज वांट टू बी हियर पंचिंग बैग। अगर उनका स्ट्रेस है, उनका मेंटल गेम इज नॉट गोइंग स्ट्रांग, देन शी शुड बी टेकिंग रेस्ट rather than coming on social media, posting videos and thrashing her own subscribers. आप नहीं बोल सकते कि I will not explain anything, this is my channel. Of course it is your channel, but we made that channel famous, so we definitely owe an explanation. We definitely do. We definitely deserve an apology from you. We definitely do. He very well knows कि क्या हो रहा है, she has watched my video, everything she knows, but still she has not spoken a word about it. So this only proves to me that she is very stubborn, very egoistic and very full of herself. कितना टाइम लगता है एक सॉरी बोलने के लिए? आपसे एक सॉरी सुनना चाहते हैं कि आपने जो किया है वो सही नहीं है, but you are so full of yourself that you can't even tell them a basic sorry.
आप उनको टॉक्सिक बुला सकते हो, आप उनको एनवियस बुला सकते हो, जेलस बुला सकते हो, अनहैप्पी बुला सकते हो, बट आप उनको ये नहीं बोल सकते कि नो डार्लिंग्स आई एम सॉरी, आई शुड नॉट हैव टोल्ड दैट। मैंने ये जो बात बोला था कि मालविका इज़ नॉट एट ऑल वर्सेटाइल, तो इसके बारे में बहुत सारा बात हुआ था कि क्यों वर्सेटाइल होना है, वो उनका जॉनर है, वो उनको उस पे काम करना है, उनको न्यूट्रल मेकअप भी करना है, वो क्यों दूसरा चीज़ करेंगी। तो द आंसर इज़ कि अगर फर्स्टली न्यूट्रल मेकअप बहुत तरीके के न्यूट्रल मेकअप होते हैं, सिर्फ मॉव्स एंड गोल्ड से ही न्यूट्रल मेकअप नहीं होता, तो वो सेम ही चीज़ करती है एवरी टाइम, तो उनका कलर फैमिली भी डिफरेंट नहीं होता है। सो फर्स्ट दैट, सेकेंडली as a public personality and when you are into a creative thing, it is very important for you to be creative, and especially जब आप एक मेकअप ब्लॉगर अपने आप को बोल रहे हो, यूट्यूबर बोल रहे हो, तो आपको तो वो टाइटल आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। यू हैव टू डू ऑल द लुक्स, ताकि लोग आपको बोल पाए नहीं दिस इज अ ऑल राउंडर फुल फ्लेजेड मेकअप इन्फ्लुएंसर। सिर्फ एक तरह का ब्राउन्स एंड गोल्ड्स एंड मॉव्स कलर अगर आप यूज़ करोगे तो कैसे आप बनोगे एकदम फुल फ्लेजेड एक इन्फ्लुएंसर। हम लोग जो इतने इन्फ्लुएंसर्स है वो क्यों हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग एवरी टाइम डिफरेंट कुछ करें, क्यों? हम लोग भी तो सब कुछ ईजी काम कर सकते हैं, हम लोग भी न्यूट्रल मेकअप कर सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रल मेकअप इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट टू डू। तो हम लोग भी तो वही कर सकते हैं, क्यों हम लोग इतने सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपने बॉडी पेंट करते हैं, इतना अच्छा एक्सटेंसिव मेकअप लुक्स करते हैं, तो वो क्यों करते हैं? वो लोग भी तो ईजी उपाय खोज सकते थे, वो लोग क्यों करते हैं? टू इम्प्रेस देयर ऑडियंस। एंड अगर ऑडियंस ही वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं करेंगी और कोई भी वर्सेटैलिटी नहीं दिखा रहा है, तो आपको उनको सपोर्ट करना है, और जो एक्चुअली काम कर रहे हैं आपको इम्प्रेस करने के लिए हज़ार चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, आपको उनको नहीं सपोर्ट करना है। अप्रिशिएट द वंस हु आर ट्राइंग टू बी इनोवेटिव, ट्राइंग टू बी क्रिएटिव, दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड फेमिनिस्ट। आप एक बड़े इन्फ्लुएंसर को सपोर्ट करो, वो गलत कर रहे हैं फिर भी सपोर्ट करो, उनके लिए रीजंस दो, उनके लिए एक्सक्यूजेस दो, दैट इज नॉट कॉल्ड फेमिनिज्म। फेमिनिज्म मीन्स कि आप लोगों को सपोर्ट करो, जिसको भी सपोर्ट करना है, लड़की को करो, लड़के को करो, ट्रांसजेंडर को करो, डजंट मैटर, बट जिसको भी करो दैट पर्सन शुड बी डिजर्विंग ऑफ दैट। आप देखोगे वो क्या कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज शी इज अ बिग नेम, आप वो सोच के मत जाओ। अब एक्टर्स को बोलोगे कि ये सिर्फ हमेशा एक ही टाइप का रोल करती है या करता है, ये दूसरा टाइप का रोल क्यों नहीं करता? सो तब आपको वर्सेटाइल एक्टर चाहिए, बट यहाँ पे आपको नहीं। वाई? एक्टर, द डिफरेंस बिटवीन द एक्टर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स आर कि वो लोग बड़े स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, हम लोग एक लैपटॉप स्क्रीन पे काम कर रहे हैं, दैट इज इट। बाकी सब सेम है। आजकल के इन्फ्लुएंसर्स आर सेलिब्रिटीज, दे आर गेटिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू कोलैबोरेट विद ब्रांड्स। सो वाई द डिफरेंशिएशन? उनको आपको यूज करने मत दो, आपके प्यार को, आपके भरोसे को यूज करने मत दो। दैट इज व्हाट द ऑडियंस शुड नॉट बी डूइंग। ओके, बहुत से मुझे ये भी बोल रहे हैं कि आपको ये वीडियो पे, आपको बाकी वीडियो पे 2000-3000 व्यूज आते हैं, आपको ये वीडियो में 30,000 व्यूज आ गए, योर हाइस्ट वीडियो, आपने किसी के बारे में खराब बोला और इतना आपको व्यूज मिल गया। सो फर्स्टली दिस इज नॉट माई फर्स्ट वीडियो टू टच 30K। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बना था विच ऑल्सो वेंट वायरल। आप देख पाओगे कि मैंने जब पॉन्स के बारे में वीडियो बनाया था दैट वेंट वायरल, और एक वीडियो था दैट वाज अ शॉर्ट वीडियो दैट क्रॉस्ड 2 लाख व्यूज। तो ऐसा नहीं कि मैं दिस इज माई फर्स्ट वीडियो विच एक्चुअली वेंट वायरल। एंड आपको ये भी सोचना चाहिए कि वाई इट वेंट वायरल, बिकॉज सो मेनी पीपल वर थिंकिंग दिस, बट वो कभी बोल नहीं पा रहे थे बिकॉज दे डोंट हैव अ चैनल, और वो कोई और यूट्यूबर आके ऐसे बात नहीं करेगा, सो दे डिडंट हैव अ लाइक आउटलेट जहाँ पे ये चीज़ निकलती। तो व्हेन आई बिकेम देयर आउटलेट, दे ऑल केम हियर, दे ऑल सपोर्टेड इट। 95% ऑफ माई कॉमेंट सेक्शन सिर्फ प्यार से भरा हुआ था, एंड मैक्सिमम ऑफ देम एग्रीड टू मी। सो या यू कैन डेफिनेटली से कि लोगों ने मालविका का पिक्चर थंबनेल देख के क्लिक किया होगा, बट जिन्होंने सब्सक्राइब किया, जिन्होंने कमेंट किया, जिन्होंने लाइक किया, जिन्होंने मुझे फॉलो किया, जिन्होंने मुझे प्यार दिया, दे गेव दैट प्यार बिकॉज ऑफ मी, हाउ आई talked about the entire situation, how I gave my entire reaction without being nasty to the other person. That's why they showered love on me, not because of Malvika. They came because of Malvika, but they stayed here because of me. लोगों ने ये सारी चीज़ें फील की है, एंड इसलिए उन्होंने जब ये थंबनेल देखा उनको लगा कि नहीं, जो वो बोलना चाहते शायद मैं बोलूँगी ये वीडियो में, एंड दैट्स वाई दे क्लिक्ड ऑन टू दिस वीडियो, एंड दैट्स वाई दे शोड सो मच लव, बिकॉज दे completely resonated with me, they completely related with me on this one. And also people telling me that I did this entire video just to gain money. I don't know whether I should be telling this or not, because this might sound really I don't know what, but जितना पैसा मुझे इधर मिला है इस वीडियो की वजह से, उससे ज़्यादा मैं डेली कमाती हूँ। सो या वाई वुड आई टेक सच अ रिस्क जस्ट फॉर दिस मनी? दैट्स नॉट वर्थ इट। मुझे अगर एक्चुअली मनी कमाना होता ना, तो मैंने जो आपको बोला कि आपको ये बड़े इन्फ्लुएंसर्स को बहुत ही मक्खन लगाना पड़ेगा, ऑयलिंग करना पड़ेगा, यूट्यूब में बहुत अच्छा बात करना पड़ेगा, तब वो आपका चैनल पुश करेंगे और आपको बहुत सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे, बहुत सारे आपको ब्रांड्स कोलैबोरेशंस मिल जाएंगे, वो सब तब होता है, राइट? जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स करते हैं, ब्रांड्स को बहुत प्रेज करते हैं। तो दैट्स हाउ यू गेट ऑन टू दैट PR लिस्ट, दैट कोलैबोरेशन लिस्ट, दैट गुड बुक्स।
आई एम नॉट इन देयर गुड बुक्स, आई एम इन देयर बैड बुक्स. सो मुझे कभी भी कोई कोलैबोरेशन या कोई भी हेल्प मुझे इससे नहीं मिलने वाली है. अगर मैंने ये वीडियो नहीं बनाया होता और अगर मैंने इस वीडियो की जगह मालविका के बारे में सिर्फ अच्छा बात किया होता, शी वुड डेफिनेटली हैव प्रमोटेड दिस वीडियो एंड उससे मुझे फ़ायदा होता. लोग भी बहुत अच्छा बोलते मेरे बारे में, उनको भी बहुत अच्छा लगता, वो भी मुझे प्रमोट करती, मुझे भी बहुत व्यूअर्स मिलते, बहुत सारे मुझे फॉलोअर्स मिलते, बट वो सब मक्खनबाजी से मिलते. एंड आई एम नॉट अ गर्ल हु डज मक्खनबाजी. मैंने आई हैव कॉल्ड आउट ब्रांड्स, मैंने मामा ने, वाव ने, दे ऑल कॉन्टैक्टेड मी फॉर कोलैबोरेशंस, दे ऑफर्ड मी गुड मनी एंड आई डिनाइड इट, नॉट वंस बट ट्वाइस, ओनली बिकॉज ऑफ माई एथिक्स कि मैं नहीं करूँगी. सो अगर मुझे पैसे के लिए करना होता ना तो मैं वो सब करती, ये सब नहीं. द लास्ट थिंग दैट आई वुड टेल माई ऑडियंस, टेल माई सब्सक्राइबर्स, टेल द गॉर्जियस पीपल आउट देयर कि आप लोग डिसाइड कर लो कि आप लोग क्या चाहते हो, बिकॉज समटाइम्स द ऑडियंस इज ऑल्सो कन्फ्यूज्ड. जब आपको कोई सच्चाई बोलता है तब आप बोलते हो दे आर मीन, दे आर बैड, दे आर डूइंग इट फॉर द मनी, दे आर डूइंग इट फॉर द व्यूज़, ये सब. जब कोई ब्रांड्स को ऑयलिंग करता है, इन्फ्लुएंसर्स को ऑयलिंग करता है, उनके बारे में अच्छा बोलता है, उनसे कोलैबोरेशंस लेते हैं, तब आप बोलते हो कि वो चेंज हो गई है. तब आप बोलते हो कि ये पैसे के लिए करती है, पैसे के लिए कोलैबोरेशंस लेती है, पैसे के लिए लोगों से ये सब करती है. सो यू गाइज डिसाइड कि आप लोग को क्या चाहिए, वेदर यू वॉन्ट ऑनेस्टी और यू वॉन्ट ऑयलिंग. सो चूज़ वन एंड स्टिक टू इट. बिकॉज अगर आप एक बार बोलोगे कि नहीं ये गलत है, फिर वो करेगी तो वो गलत है, देन यू आर ऑल्सो कन्फ्यूजिंग द इन्फ्लुएंसर्स, द कॉन्टेंट क्रिएटर्स. सो डोंट डू दैट टू अस एंड डोंट बी मीन टू अस. एंड मैंने पहले वीडियो में भी बोला था और अभी भी मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ डू नॉट सेंड एनी हेट टू मालविका और एनी इन्फ्लुएंसर फॉर दैट मैटर टू मी एज वेल. नीचे कमेंट्स में बहुत जनों ने लास्ट वीडियो में उनके पेरेंट्स, उनके हस्बैंड, ये सब के बारे में बात किया था. दोज आर इररिलेवेंट थिंग्स. वो अपनी लाइफ में क्या करे क्या नहीं, दैट इज़ नॉट आवर लुकआउट. प्लीज़ डू नॉट डू दैट. कोई आपकी लाइफ में अगर ये सब करेगा तो आपको पसंद आएगा नहीं ना, सो आप वो मत करो. वी आर हियर टू जज देयर वर्क. सो प्लीज़ लेट्स फोकस ऑन दैट. बिकॉज अगर हम ये सब बाकी चीज़ों पे फोकस करेंगे ना तो वो लोग बहुत ईजिली बोल देंगे कि नहीं ये सब तो सारी चीज़ें वो लोग हेट है. तो प्लीज़ वो उनको बोलने का मौका मत दो. सिर्फ उनके काम के बारे में बात करो एंड डोंट टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स. सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट टू द ऑडियंस एंड बी लिटिल alert, be little aware of the things that is happening. Like don't let people take advantage of you. Don't do that to yourself because you deserve much, much, much more than that. So yeah, these are all the criticisms that I got in my last video, जिसके बारे में मुझे बात करना था, explain करना था, clarification देना था. तो I hope I gave it to you. And और एक question जो बहुत ज़्यादा आया था वो था कि why didn't you talk about Komal Pandey? तो I think I will talk about her in any of my later videos because उनके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा तो नहीं बोलना है. But yeah, I have few things to say and I will definitely make sure कि मैं वो अपना opinion जो है वो आपको definitely raw and unfiltered but elegantly दूँ. So yeah, I hope you will wait for that and my Nykaa haul is coming next. मैंने सोचा था कि मैं Nykaa haul ही डालूंगी but इतने सारे comments, like over 900 comments and इतने सारे questions, I thought कि मुझे ये video पहले करना चाहिए and then the Nykaa haul. So yeah, I will see you guys very, very soon. Till then, take very good care of yourselves. I love you. Thank you so much for all the love on the last video. You guys made my day. Like itna pyar from unknown people on the net is really overwhelming. Really overwhelming. Thank you so much. Bye.